Homework 2 of probability distribution. First question, dash distribution is symmetrical when p is equal to 0.5. p is equal to 0.5 होता है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है? बाइनोमियल. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेथड ऑफ मोमेंट्स. अभी ये याद रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब काम में आता है? जब मेथड ऑफ मोमेंट्स यूज होती हो तब. थर्ड क्वेश्चन, an experiment is known to be random if the result of the experiment. रैंडम कब बोला जाता है एक्सपेरिमेंट? जब उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट ना किया जा सके. तो कैन नॉट बी प्रिडिक्ट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन, अ थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अ थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पे ऑप्शन जो है इट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Fifth question, probability density function is always greater than or equal to 0. So option B is correct, greater than or equal to 0. Sixth question, when p is equal to 0.5 binomial distribution is, जब p होता है 0.5 तब binomial distribution कैसा होता है? It is symmetrical. तो option B is correct. Seventh question, a dash distribution is a theoretical distribution that express the functional relation between each of the distinct values of the sample statistics. Sample statistics के बीच में जो relation दिखाता है उसे उस distribution को क्या बोलते हैं? We can say that it is sampling distribution. Sampling distribution. D. Eighth question, probability mass function is always greater than or equal to 0. Option C is correct. Ninth question, if the probability of horse A winning a race is 1/6 and horse B will winning a race is 1/4, then probability that one of the horses will win the race. तो ये आगे आ गया है सम. क्वेश्चन नंबर 9, A will win the race, horse उसका probability 1/6, B will win the race उसका probability 1/4. तो at least that one of the horses will win the race. मतलब ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, क्योंकि दोनों तो साथ में जीत नहीं सकते. दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट. 1/6 प्लस 1/4 12 आएगा एलसीएम. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन, 3 से मल्टीप्लीकेशन. तो करेक्ट ऑप्शन इज 5/12. करेक्ट ऑप्शन इज 5/12. 10th क्वेश्चन, थियोरिटिकल क्वेश्चन है. डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट. जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो, रेयर इवेंट हो, उसके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 11th क्वेश्चन, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is equal to 4 and p is equal to 1/3, देन द वैल्यू ऑफ वेरियांसेस. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियांस की फॉर्मूला क्या होती है? 11th क्वेश्चन, वेरियांस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NPQ. अभी यहाँ पे n is given 4 and p is given 1/3, तो q is obviously 2/3, 1 minus 1/3. Simplifying this, you will get 8/9. So option B is correct. B is correct. 12th question, standard deviation of binomial distribution. Since variance is NPQ, then standard deviation should be root NPQ. So option B is correct in 12th question. 13th question, if an event cannot take place, probability will be, if an event cannot take place, that means event is impossible event. Impossible event की probability क्या होती है? 0. तो option C is correct. 14th question, the mean of binomial distribution is 4 and variance is 3. What would be value of n? आगे आया ये question. Mean is 4 and variance means NPQ is 3. ये NP यहाँ पे रखते हैं तो 4Q is equal to 3, Q is equal to 3/4. That implies P is equal to 1/4. हमें ढूंढना है N की वैल्यू. सिंस NP is equal to 4, P की जगह पे 1/4 रख दे. N into 1/4 is equal to 4. ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जाए तो N is equal to 16. N is equal to 16. तो ऑप्शन B is correct. Option B is correct option.
15 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, √m, ऑप्शन सी इज करेक्ट. 16 क्वेश्चन, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √3, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ p. p की वैल्यू हमें ढूंढनी है, ऐसे ढूंढ सकते हैं कि मीन इज 4, तो np इज इक्वल टू 4 एंड standard deviation, that is √npq, is √3. That means npq is 3. यहाँ पे np की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 4q is equal to 3, so q is equal to 3 by 4. That implies p should be 1 minus q, that is 1 by 4. So option B, Bombay, is correct option. 17th question, variance of a binomial distribution is always लेस देन इट्स मीन. वेरिएंस जो होता है वो मीन से कम होता है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. 18 क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ आर किंग इफ फर्स्ट इज रिप्लेस्ड. दोनों किंग है, पहला अगर वापस रख दिया गया हो तो पहला किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/52 एंड सिंस इट इज रिप्लेस्ड वो वापस रख दिया जाता है, दूसरा किंग हो उसकी भी 4/52. Simplifying this, you will get 1/169. So option B is correct. 4 13s are 13 13s are 169. 19th question, if binomial distribution NP is equal to 6, NPQ is equal to 3, P is equal to, 19th question, NP is equal to 6, NPQ is equal to 3. यहाँ पे NP की जगह पे हम 6 रखे, 6Q is equal to 3, so Q would be 1/2. Since Q is equal to 1/2, then P is equal to 1 minus Q is equal to 1/2. It is also equal to 1/2. So option B is correct. 20th question, in binomial distribution P denotes probability of success. P का मतलब होता है probability of success. 21, if the binomial distribution mean and standard deviation are given, then P is equal to 1/5. Option C, 1/5. 22nd question, a survey shows that 68% of women like apples. WA is equal to 68%, मतलब 0.68, and women like oranges is equal to 74%, मतलब 0.74. What is percentage that they like both? Both मतलब apple भी and oranges भी. Now since they are independent event, तो हम ऐसे लिख सकते हैं apple into women like oranges. 0.68 into 0.74. So option is 0.5. Option is 0.5. 0.5 मतलब 50%. Option A is correct. Option A is correct. 23 जो है वो क्लास वर्क का सम है, आगे आ गया है, उसका आंसर है C, 80/243. 24th भी होमवर्क 2 में आ गया था. कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर 3 पोस्ट. In the first post there are 3 candidates, for second there are 4, third there are 2. What are the chances of getting at least one? मतलब P of A union B union C, तो आंसर होगा इसका 3/4. A होगा इसका करेक्ट ऑप्शन. 25th क्वेश्चन, %3% of a given lot of manufactured parts are defective, तो N is given 4 and P is given 0.03. 3% मतलब 0.03, and हमें ढूंढना है probability that in a sample none will be defective. हमें ढूंढना है P of 0. Since probability is very rare, so we can use Poisson distribution e raised to minus 0.03 into 4, क्योंकि NP ही होगा M, और यहाँ पे 1.2 ये इनका मल्टीप्लिकेशन.
0.12 सॉरी 0.12 raised to 0 upon 0 factorial. तो ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा दैट वुड बी 0.885. 0.885. 26 क्वेश्चन. क्लास कंसिस्ट 26 में क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज, बॉयज है 10 and 20 girls, girls are 20, of which half of the boys and half of the girls have blue eyes. मतलब इनमें से half of the boys, 5 boys are having blue eyes, blue eyes, and इनमें भी 10 girls are having blue eyes. हमें क्या ढूंढना है? वी वॉन्ट टू फाइंड आउट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम इज अ बॉय एंड हैज अ ब्लू आई. बॉय है और उसकी आई जो है ना वो ब्लू है. तो हम ऐसे इसको ढूंढ सकते हैं कि टोटल कितने लोग हैं. हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय हैविंग एंड हैज अ ब्लू आई. बॉय and having blue eyes. तो वो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं कि टोटल ब्लू आई वाले कितने हैं? लड़के 5 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30. दैट इज 1/6. ऑप्शन ए. 27 में 15 डेट्स आर चूजन एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फ्राइडेज. तो 15 में से 2 फ्राइडे. 15 तो हमें ढूंढना है P ऑफ 2. बाइनोमियल से ऐसे ढूंढेंगे 15C2. फ्राइडे होने का चांस है 1/7 raised to 2 और ना होने का चांस है 6/7 raised to 30. ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर इसको सॉल्व करने के बाद. 28 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज फॉल्स. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है एंड दैट इज m. So it is not biparametric distribution. 29 binomial distribution is a biparametric distribution. This is true. Binomial में 2 पैरामीटर्स होते हैं. 30 में अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को 2 वेरिएबल x एंड y फॉलोज करता है, पहला वेरिएबल है उसका पैरामीटर m1, दूसरे का m2, देन x प्लस y का पैरामीटर होगा m1 प्लस m2. तो यहां पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. 31 the binomial or Poisson distribution could be unimodal or bimodal. This is true क्योंकि binomial होता है unimodal and Poisson होता है bimodal. 32 if x is a Poisson variate with parameter 1 then find x is a Poisson variate with m is equal to 1 और हमें ढूंढना है P of 3 less than x less than 5. अच्छा, हमने आगे भी बोला था कि सिंस Poisson distribution is discrete distribution, इन दोनों के बीच में ओनली इंटीजर वैल्यू जो होगी वही अज्यूम करेगा. तो इन 3 और 5 के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन सी है? 4. सिंस m is equal to 1, e raised to -1, 1 raised to 4 upon 4 factorial. Simplifying this, here it is e raised to -1, so value is given 0.3881. So simplifying the whole calculation, you will get 0.01536. So option A is correct. Option A is correct. 33. Find the probability that at least 5 defective balls will be found in a box of 200 balls. If it is known that 2% of such balls are expected to be defective. मतलब हमें m पता चल गया है यहाँ पे 33 में m is equal to 4. m is equal to 4. हमें ढूंढना है P of x at least 5 मतलब greater or equal to 5. That means 1 minus P of x less than 5. 1 minus P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4. 2 P of 3 plus P of 4.
By simplifying this, you will get the answer 0.3717. 0.3717. Question number 34. The mean and variance of Poisson distribution are equal. Yes, in Poisson distribution mean and variance are equal. So true. 35. If a variable x follows Poisson distribution, x जो है वो Poisson distribution को follow करता है और यहाँ पे जो दिया है वैल्यू वो इस तरीके से दिया है. सम नंबर 35. हमने आगे ऐसे बहुत से सम्स देखे पॉइजन में. जब ऐसा हो दो सक्सेस कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ सक्सेसेस को कंपेयर किया हो तो मीन क्या होगा? हायर नंबर ऑफ सक्सेस, मीन होगा 2. तो यहाँ पे वेरिएंस भी मीन के जितना ही होगा, तो आंसर इज 2 बी. 36. Find the variance of binomial distribution with n is equal to 10 and p is equal to 0.3. n is equal to 10 and p is equal to 0.3. तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है, वेरिएंस is equal to npq. n is 10, p is 0.3, q is 0.7. Multiplying this you will get 2.1. तो ऑप्शन ए is correct. ऑप्शन ए. 37. The mean and variance of binomial distribution is 12. This is mean and variance binomial का कभी भी सही equal नहीं हो सकता. So this is false. This is false. Option B is correct. 38. If two tails of a normal curve extend infinitely on both the sides of the curve, dash the horizontal axis. Two tails of normal curve never touches the horizontal axis. वो एकदम नजदीक जाते हैं horizontal axis पे पर कभी टच नहीं होते. So we can say never touch. Option B. फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39. उसमें क्या है? मीन एंड वेरिएंस आर गिवन. मीन इज गिवन 2. सिंस वेरिएंस इज गिवन 9, सो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 3. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का समय हमें 2 to x के बीच का एरिया दिया हुआ है. एरिया इज गिवन 0.4115. तो सबसे पहले इस एरिया का z की वैल्यू ढूंढ लेंगे और फिर z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. उसमें z की वैल्यू हमारी आती है फॉर दिस मच ऑफ प्रोबेबिलिटी 1.35 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3. बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट 6. x की वैल्यू मिलेगी हमें, x इज इक्वल टू 6.05. Option B is correct. Option B. 40th question. In a binomial distribution, probability of getting 3 and 4 success, P of 3, P of 4, is ratio is given 0.2457. इसकी probability और यहाँ पे 0.0819. तो ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 आएगा. दैट मीन्स P of 3 दैट इज 6C3 P raised to 3 Q raised to 3. ये इस साइड डाले तो 3 into 6C4 P raised to 4 Q raised to 4. 6C3 होता है 20, P raised to 3 चला जाएगा, यहाँ पे एक पावर रहेगा, Q स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे एक पावर रहेगा. तो 20Q is equal to 3 into 6C4 is 15. 15P. इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करें 5 4s and 5 3s. हमें क्या ढूंढना है? हमें we want to find out P and Q both values. तो यहाँ पे Q की जगह पे 1 minus P लिख दे is equal to 9P. That means 4 minus 4P is equal to 9P. इस साइड ले जाए 4 is equal to 9P plus 4P and that is 13P. So P is 4 by 13. हमें P की वैल्यू मिली, so Q is equal to 1 minus P and that is 1 minus 4 by 13 is 9 by 13. दोनों की वैल्यू मिल गई. तो यहाँ पे ऑप्शन B is true. 41. Probability distribution is known as theoretical distribution. Yes, it is true. 42. A bag contains 50
5 red and 3 black balls. Second bag contains 4 red and 5 black balls. One of this is selected at random. एक बैग सिलेक्ट करनी है रैंडमली, तो पहले 1/2 लिख देना पड़ेगा. फिर हमें ये बोला गया है एट रैंडम एंड अ ड्रॉ ऑफ 2 balls इज मेड फ्रॉम इट. 2 बॉल लिए जाते हैं उसमें से. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज चांस ऑफ दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. वो अलग अलग कलर के हैं. मतलब अगर ये बैग सिलेक्ट हुई हो तो एक होगा रेड में से 5C1 और एक होगा ब्लैक में से 3C1, जबकि टोटल 8 में से 2 बॉल सिलेक्ट किए गए. यहाँ पे अगर सिलेक्शन होगा तो रेड में से एक मतलब 4C1 एंड एक होगा ब्लैक में से तो 5C1 अपॉन टोटल 9 में से 2 सिलेक्ट किए गए. सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 15 अपॉन 8C2 इज 28. यहाँ पे 5 4s are 20 अपॉन 36. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे आंसर आएगा 275 अपॉन 504. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. 43 फाइंड मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सिक्सेस. अच्छा, नंबर ऑफ सिक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 व्हेन वी थ्रू अ डाई, 6 मिलने का चांस कितना होता है 1/6. और यहां पे हम इफ 2 टॉसेस तो n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ट्रायल्स है 2, तो हमारा मीन है जो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू np इज इक्वल टू 2 into 1/6, इट इज 1/3. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. सम नंबर 44 आगे आ गया है सम ये, और इसका आंसर है ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 45 फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 7 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √n. दिस स्टेटमेंट इज, यहाँ पे ऐसा दिया है कि मीन इज 7 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √8. दैट इंप्लाइज वेरियांस इज 8. दैट मीन्स वेरियांस इज ग्रेटर देन मीन. जबकि नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी मीन वेरियांस से कम नहीं हो सकता. तो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एटमोस्ट 2 सक्सेस. यहाँ पे सिंस np इज इक्वल टू 3 and npq is equal to 2, so we will get q is equal to 2/3 and p is equal to 1/3. ये सब वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारा जो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा p ऑफ x लेस और इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी वुड बी 0.3767. ऑप्शन ए. बाइनोमियल का सिंपल सा सम. 45 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 53 मंडेज इन अ लीप ईयर. आगे आए लीप ईयर में बोला हो तो 2/7, सिंपल ईयर में बोला हो तो 1/7. ऑप्शन ए. 47 होम में से ये भी आगे आ गया है. कोई भी 2 लेटर सिलेक्ट करने जब वॉवेल्स उसमें से नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए 1/6. 49 2 लेटर्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, ये अलग समय HOME में से होम में से 2 लेटर्स सिलेक्ट करने. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज वॉवेल. कम से कम एक तो वॉवेल हो ही. तो हम ऐसा ढूंढे, हमें ढूंढना है एटलीस्ट 1 वॉवेल. एटलीस्ट 1 वॉवेल. तो हम ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस नो वॉवेल्स. 1 माइनस नो वोवेल मतलब H एंड M में से सिलेक्ट होगा दोनों. 2C2 अपॉन टोटल 4 में से 2. 1 माइनस 1/6 5/6. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फिर से समझ लो, हमें ढूंढना है कि एक भी वॉवेल एटलीस्ट 1 इज वॉवेल, कम से कम एक वॉवेल है. तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? बेहतर तरीका ये है कि 1 में से एक भी वॉवेल नहीं है, वो इवेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा.
50th, 2 letters are drawn from random from word HOME. Find the probability that one of the letters should be M. एक लेटर M हो, HOME. तो पहला लेटर M हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, और दूसरा भी 1/4, क्योंकि M इज वन ऑफ द लेटर्स आउट ऑफ 4 लेटर्स. So that is 2/4 and it is 1/2. Option B. Option B. 51 में भी mean and variance are given, और Poisson distribution mean is given 1.6 and variance is 2. Is it true? No, because in Poisson distribution mean and variance are same, so it is false. Option 51 में आंसर आएगा B, false. 52, the probability of an event can assume any value between, यहाँ पे the real answer is none of them. हमें आंसर जो दिया है वो दिया है 0 and 1, but real answer is none of them, क्योंकि from 0 to 1, खाली 0 and 1 नहीं. 53, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है बाइनोमियल का, तो रूट NPQ, that is root N is 500, P is 0.1, so Q should be 0.9. Simplifying this, you will get root 45, and that is 6.7. That is D. Option is D. 54, the most important probability distribution is known as normal distribution. सबसे important जो है वो normal distribution होता है. 55, और binomial distribution is symmetrical when P is equal to 0.5. Option C is correct. 56, we use tree distribution when sample size is small. ये sampling में आ गया, जब sample size small होती है तब हम tree distribution use करते हैं. 57, in normal distribution as the distance from dash decreases, the curve goes far and far from the horizontal axis. Mean median mode से distance जब ज़्यादा हो जाता है तब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से दूर हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी. 58, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर नॉट इक्वल व्हेन Q इज इक्वल टू 0.5. फॉल्स. मीन मीडियन मोड इक्वल होता है जब Q इज इक्वल टू 0.5 होता है, तब सिमेट्रिकल होता है डिस्ट्रीब्यूशन. 59 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नीचे में से कौन सी वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकती, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है C, 2.5, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी पॉइंट में वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता. नंबर ऑफ सक्सेस कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई सी. 60, द नंबर ऑफ सुसाइड्स और डेथ बाय हार्ट अटैक इन टाइम T इज एग्जांपल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इट इज अ रेयर इवेंट, हर रोज होने वाली घटना नहीं है ये. 61, द शेप एंड लोकेशन ऑफ अ डैश चेंजेस एज P चेंजेस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ N. N एंड P दोनों किस में होते हैं, इट इज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे जैसे N चेंज होगा एंड P चेंज होगा वैसे वैसे शेप चेंज होगा, तो ऑप्शन बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सम नंबर 62, द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 500 and 60% ऑफ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 600. तो अगर हम नॉर्मल कर्व ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो फिगर हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, मीन इज 500 एंड 60% वैल्यूज आर ग्रेटर देन, मतलब 60% हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे, मोर देन 600. व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ढूंढना है, तो z की वैल्यू वैसे होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट मीन्स x इज 600 ईयर माइनस 500 अपॉन सिग्मा इज, ढूंढना है हमें z की वैल्यू फॉर, ये देखो ये अगर 16% है तो ये होगा 34%, मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वी कैन से 0.34. 0.34 के लिए z की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी फॉर 0.34, वैल्यू ऑफ z इज 0.995. बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 100. सिग्मा की वैल्यू हमें जो मिलेगी इसके लिए वो मिलेगी 100.
63, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। 63 आगे आ गया है सम, और उसका आंसर है बी। क्लास वर्क में भी आ गया है, होमवर्क 1 में भी आ गया है, क्लास वर्क का सम नंबर 50, आंसर इज बी। देन सम नंबर 64, सम नंबर 64, उसमें इंटरवल दिया है और हमें जानना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे z की फॉर्मूला होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू एंड सिग्मा इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ z इज ऑल्सो गिवन। वैल्यू ऑफ z इज 2x माइनस 3 अपॉन 4। 4 यहाँ पे ले ले तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 2 8 प्लस 3 इज 11। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, the mean of normal distribution is 50, mean is given 50 and 5% values are greater than 60, मतलब x दिया है 60। हमें क्या जानना है, then the standard deviation of the normal distribution, mean is 50 and only 5% observations are, 5% ऑब्जर्वेशन जो है वो 60 से ज्यादा है, तो ये होगा 0.45। 0.45 के लिए z की वैल्यू अज्यूम करें x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और 0.45 के लिए z की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.64 इज इक्वल टू x इज 60 माइनस 50 बाय सिग्मा। सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन 6.01, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 66 यही टाइप का है। इसमें क्या है, हमें z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे z की वैल्यू मिलती है 1.28 इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो ढूंढनी है, माइनस म्यू इज 100 एंड सिग्मा इज 20। सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट x इज इक्वल टू 125.60। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सम नंबर 67, सम नंबर 67 में दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इन सम नंबर 67 सबसे पहला इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, z1 एंड z2 दो है यहाँ पे इन सम नंबर 67, एक नेगेटिव साइड पे एक पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि नॉर्मल कर्व ऐसा बन रहा है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 8% ऑफ आइटम्स आर ओवर 64। 8% जो है वो 64 से ज्यादा है, मतलब ये 0.08, तो यहाँ पे होगा इतना एरिया 0.42। एंड सिमिलरली दूसरी बात दिया है कि 31% आर अंडर 45, 31% आर अंडर 31 मतलब 0.31, तो ये एरिया होगा जो हमें 0.19। सिंस देखो ये x1 है और ये x2 है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, इसके लिए z1 एंड z2 अज्यूम करना पड़ेगा। सिंस दिस इज x1 इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो z1 होगा नेगेटिव में, z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एंड दूसरा z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिंप्लीफाइंग दिस z1 जो है हमें मिलेगा, यहाँ पे इट इज गिवन कि फॉर 0 to this much 0.19 z की वैल्यू 0.496, तो माइनस 0.496, x1's वैल्यू इज 45 माइनस म्यू इज वैल्यू ऑफ म्यू ढूंढना है हमें अपॉन सिग्मा। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। सिमिलरली z2 की वैल्यू जो है वो देखें, z2 की वैल्यू कितनी हो रही है, इट इज 1.40 is equal to 64 minus mu upon sigma. This is equation 2. By simplifying this to equation, we will get mu is equal to 50 and sigma is equal to 10. Method of elimination से करना है simplification. By simplifying this, we will get mu is equal to 50 and sigma is equal to 10. 68th question. 68th question में xi and fi are given
we want to find out E of x using the formula sigma fi xi, sigma fi xi, और ये यूज करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1.67 C। 69 में E of xy is equal to E of x into E of y, कब ऐसा होता है जब x and y are independent, तो it is true statement, option A is correct। 70th question, mean of the probability distribution एक्सिस, मीन को कैसे डिनोट किया जाता है, E of x से, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 71 में वेरिएंस ढूंढना है बाय द सेम वे। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होती है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x द होल स्क्वायर। E ऑफ x स्क्वायर मतलब सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस सिग्मा xi pi द होल square. Simplifying this, we will get 0.5556, option A. So this is end of homework 2 of probability distribution.